जोरहाट जिला प्रशासन के सौजन्य से आज जिला पुस्तकालय में हाई स्कूल परीक्षा में स्टार लाने वाले छात्र छात्राओं को आनंद राम बरुआ पुरस्कार प्रदान किया गया। असम की बाकी विभिन्न स्थानों के साथ साथ जोरहाट के पुरस्कार वितरण समारोह में कृषि मंत्री अतुल बोरा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान जोरहाट जिले में कुल 1123 छात्र छात्राओं को मेधावियों को आनंद राम बरुआ पुरस्कार के अंतर्गत 16,000 रूपए की राशि भी दी गई और ये राशि ऑनलाइन बैंक अकाउंट में जमा की गई है। मंत्री अतुल बोरा ने अपने संबोधन में कहा कि आज इस समारोह में शामिल होकर उन्हें हर्ष का अनुभव हो रहा है। उन्होंने पुरस्कार पाने वाले सभी छात्रों के साथ ही शिक्षकों को शुभकामना देते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षा के उत्थान के लिए पुरस्कार के रूप में एक बड़ी राशि दी है। इस राशि का सदुपयोग होना चाहिए। राज्यखনৰ বিভিন্ন জিলাত আমাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল গৈছে। কিছুমান জিলাত উপায়ুক্তসকলৰ উপস্থিতিত এই প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মতে মই যোৰহাটলৈ আহিলোঁ। ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৱেশ ঘটিছিল। যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৭৫% বা তাতোতকৈ বেছি নম্বৰ লাভ কৰিছে, সেইসকলক অসম চৰকাৰে এইবাৰ 16,000কৈ ডিবিটিৰ জৰিয়তে ধনৰাশি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ডিবিটিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত এই ধনৰাশি লাভ কৰিব। চৰকাৰখনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰাৰ, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে অনাগত দিনত তেওঁলোক আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে। কাৰণ এই যুগটোৱে হৈছে প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ, তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগ। এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখনত শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনলৈ এটা পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে বহুতখিনি নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে। বহুতখিনি বিদ্যালয় নতুনকৈ গঢ় লৈ উঠিছে। মডেল কলেজ চৰকাৰে কৰিছে, ল' কলেজ কৰিছে, BEd কলেজ খুলিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ষ্ট্ৰীম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকত আনিছে। এনেধৰণে বহুতখিনি বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে। গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আমি পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰিছোঁ, তাত ৰাইজৰ আমি আন্তৰিক সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। এই কাম অকলে চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও কৰিব নোৱাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, শিক্ষানুৰাগী ব্যক্তি, অভিভাৱক, চৰকাৰ সকলোৰে সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত আমি এটা সুস্থ শৈক্ষিক পৰিৱেশ আমাৰ ৰাজ্যখনত আমি ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, যাৰ জৰিয়তে আমি মানৱ সম্পদ সৃষ্টিত আমি অৰিহণা যোগাব পাৰিম। আমি বিচাৰোঁ যে প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰকৃত মানুহ গঢ়াৰ অনুষ্ঠান হয়, সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ দূৰদৰ্শী আৰু সবল নেতৃত্বৰে বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অনাগত দিনত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত প্ৰতিযোগিতাৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ প্ৰস্তুত হ'ব পাৰিব, সষ্টম হ'ব পাৰিব। যোৰহাটত আজি সৰ্বমুঠ আমাৰ ৰাজ্যখনত আমি ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, যাৰ জৰিয়তে আমি মানৱ সম্পদ সৃষ্টিত আমি অৰিহণা যোগাব পাৰিম। আমি বিচাৰোঁ যে প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰকৃত মানুহ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़े चेहरों का होना हिमाचल द्वारा जारी है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता युवा मोर्चा के विशाल रैली को संबोधित करने के लिए मंडी के पदर मैदान आ रहे हैं। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मंडी आएंगे। देखिए रिपोर्ट। चुनाव प्रचार में हिमाचल प्रदेश आने वाले केंद्रीय चेहरों में गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी शामिल है। 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सुंदरनगर में भारतीय जनता महिला मोर्चा की रैली को संबोधित करने आ रही हैं। वहीं हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और मैदान में कई केंद्रीय चेहरों को उतार कर लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करेगी। बता दें कि इससे पहले हिमाचल भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली सुजानपुर में होना प्रस्तावित हुई थी, लेकिन अब इसे सुजानपुर से मंडी शिफ्ट कर दिया गया है। इसे लेकर भी राजनीतिक विश्लेषक कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पत्रकार वार्ता में भी इसे लेकर कश्यप से सवाल पूछे गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 सितंबर को मंडी में युवा मोर्चा की एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश आने का ये कार्यक्रम प्रस्तावित है।
इससे पहले भी लगातार पिछले 8.5 वर्ष के कार्यकाल में और पिछले 5 वर्ष में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हिमाचल प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है और उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। अभी जो है केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी शिमला में उनका आगमन हुआ और प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी मंडी में उनका आगमन हुआ। इसके बाद तुरंत ही जो हमारा एम्स बिलासपुर है उसका उद्घाटन का कार्यक्रम और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश का प्रवास होगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी का चंबा आने का भी कार्यक्रम है। तो ये 3 कार्यक्रम बहुत शीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी के होंगे। इसके बाद भी अन्य क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री जी का प्रवास कार्यक्रम आने वाले समय में होगा। बाकी कौन कौन बड़े नेता हैं? इसके अलावा शीघ्र ही माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उनका भी प्रवास का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में होगा। माननीय राजनाथ सिंह जी उनका भी शीघ्र ही दौरा हिमाचल का प्रस्तावित है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश का आने का कार्यक्रम है। माननीय अनुराग जी आजकल लगातार जो हमारे स्थापना के 75 वर्ष के कार्यक्रम है उसमें उनका आगमन हो रहा है। इसके अलावा भी माननीय किरण रिजिजू उनका भी 25 तारीख का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 17 तारीख को माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी उनका आने का कार्यक्रम है। और इसके अलावा माननीय नितिन गडकरी जी और अन्य जो केंद्र का हमारा पार्टी के और सरकार के जो नेतागण हैं उनका हिमाचल प्रदेश के जो है विभिन्न कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि कल हिमाचल प्रदेश के लिए 5वीं गारंटी देने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आ रहे हैं, जिसका हम तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के लिए चिंतित और सजग है, जिसके चलते प्रदेश के हर वर्ग के लिए वादों के रूप में गारंटी दी जा रही है, जो प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगी। गौरव शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता सत्तासीन सरकार की महंगाई की मार से परेशान है और अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है। भाजपा सरकार में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, जिसके लिए प्रदेश की जनता अब उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी प्रदेश की पहली पसंद बनती जा रही है और जनता को अगर उम्मीद है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से है, जिसके चलते कल मंडी में पार्टी प्रदेश के लिए 5वीं गारंटी देने जा रही है। तो कुछ भी नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 5 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में है और 17 वर्ष उनको लगभग हिमाचल प्रदेश पे राज करती हुई। और बहुत बड़ी इसमें मैं बात कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिरकार आप चुनाव के समय में हिमाचल प्रदेश में रैली करके, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उनके और काबीना मंत्री हो और बड़े उनके संगठनात्मक नेता हो, चाहे अध्यक्ष हो, हिमाचल प्रदेश में आके आप क्या जिताना चाहते हैं? आखिरकार जो आपने 4.5 वर्षों में नहीं किया, कि दिल्ली में सरकार होने पर नहीं किया, हिमाचल प्रदेश आके केवल मात्र सबको पता है, हिमाचल प्रदेश की जनता जानती कि चुनावी है, चुनाव का जुमला है, आके जो वो वादे करेंगे वो कोरी घोषणा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोरी घोषणा है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि सत्तासीन सरकार है। जो व्यक्ति ताकत में बैठा है, पावर में बैठा है, उसको तो काम करना चाहिए। उसको आगे केवल मात्र पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में एक रैली कर दी, एक वो अपना जोश भर दिया और वहाँ से चले गए जुमले बोल के, झूठ बोल के। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो जागरूक लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं। तो मैं नहीं समझता, क्योंकि मोदी जी पहले भी हिमाचल प्रदेश आए हैं और बार बार वो व्याख्यान करते हैं कि हिमाचल प्रदेश से मेरा जो है बहुत पुराना नाता रहा है और मैं यहाँ रहा हूँ। वो ऐसा व्यक्त करते हैं जैसे वो यहीं के भूमि हो, यहीं के रहने वाले हो। लेकिन इस प्रकार का कभी देखने को नहीं मिला कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए कोई एक्सक्लूसिव कोई चीज़ दी हो। इनफैक्ट जो चीज़ें निरंतर रूटीन में मिला करती थी, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कट लगा है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। अब मोदी जी आए, मोदी जी के बड़ा गुनबा है, वो एक साथ सारे आ जाए, हिमाचल प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये केवल मात्र जो है चुनावी उनका जुमला है। सिसोदिया जी जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हिमाचल प्रदेश के चुनावों के निमित्त जो है 5वीं गारंटी हिमाचल प्रदेश में देने आ रहे हैं। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके फौजी जो शहीद परिवारों के लिए, उसके बाद महिलाओं के लिए 4 गारंटियां जो विधानसभा के निमित्त जो है विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने दे दी है। आम आदमी पार्टी गारंटी का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में किन वर्गों के लिए क्या काम किया जाएगा, उसको गारंटी के रूप में हम पेश करते हैं कि इन वर्ग के लिए हम ये काम करने वाले हैं। तो उसी के निमित्त चुनावों के निमित्त जो 5वीं कल बड़ी गारंटी है वो मंडी के अंदर संस्कृति जो वहाँ पे मैदान है, वहाँ पे हमारे जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब है वो 5वीं
पांचवी गारंटी की घोषणा करेंगे। और सीधा सीधा है, ये जो पांचवी गारंटी होगी किसी बड़े वर्ग को लेकर होगी, बड़ी गारंटी होगी। कल आपके साथ ये साझा भी हो जाएगी और सब इससे जो है बिल्कुल जो है इससे परिचित भी हो जाएंगे कि किस प्रकार की गारंटी जो है पांचवी गारंटी आम आदमी पार्टी ने प्रदेशवासियों के लिए दी है। आम आदमी पार्टी बड़ी सजग है विधानसभा चुनावों से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है, त्रस्त है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी के डिसफेवर में सरकार ने भी की है और जो आम जनमानस है उसके भी विरोध में बहुत बड़ा एक विरोध जो है आम जनमानस में है, क्योंकि सत्तासीन सरकार ने हर वर्ग को जो है परेशान किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है। वीरवार को हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के निजी आवास होली लॉन्च में आई ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेता परसराम के लिए टिकट की मांग की। आनी से होली लॉन्च पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नमाखों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह टिकट देने से परसराम को टिकट देने की मांग की। आनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से शिमला पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि साल 2017 के चुनाव में भी परसराम को टिकट देने में देरी की गई। उन्हें प्रचार करने के लिए केवल 9 दिन का ही समय मिला था। ऐसे में पार्टी को परसराम को सही समय पर टिकट दे देना चाहिए ताकि वह घर घर जाकर प्रचार कर सके। आनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया। वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि आनी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर है, कार्यकर्ताओं की बात अलाकमान तक पहुँचाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, एक एक सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये तो आनी क्षेत्र की जो सीट है, ये रामपुर से लगता हुआ एरिया, इसको हम अपनी सीट मानते हैं। पिछली बार किन्हीं कारणों से हम इस सीट को नहीं जीत पाए, पर अब भी हम प्रयास करेंगे कि अवश्य ये सीट कांग्रेस की झोली में आएगी ताकि हम हिमाचल प्रदेश में एक एक सीट को लेकर जो हमारा लड़ाई भाजपा से है उसमें हम विजय हासिल करें और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाए। मान लीजिए तय करना है किसी टिकट नहीं है, पर आपकी तरफ क्योंकि आपके पास गुहार यहाँ पे लगाने आया है। ठीक है, मैंने इनकी बात सुन ली है। सबके भावनाएं उन्होंने हमारे समक्ष रखी है, चाहे महिलाएं है, चाहे यूथ है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे अपने इलाके के चुने हुए लोग हैं, सभी ने अपनी बात रखी है, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस बात को बहुत महत्वपूर्ण समझते हुए हम इस पर जब निर्णय लेंगे तो ये बात अवश्य ध्यान में रखी जाएगी। मैम, जिस तरह से इसके अलावा आपसे पूछते हैं कि अभी पता लग जाएगा, उसके बारे में भी मंथन किया जा रहा है कि कौन कब आएगा। उसका जब टाइम आएगा तो उनको मैदान में उतारेंगे और वो आएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार के लिए काम करेंगे। भाजपा लगातार हमला बोल रही है कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर। उनका कहना ये है कि जो कांग्रेस है उन्हें भारत जोड़ने की जगह अपनी पार्टी को जोड़ने के लिए जो काम है सबसे पहले वो करना चाहिए। ठीक है, वो अपनी पार्टी की जो बात है ना उस तक सीमित रहे। हमने क्या करना है क्या नहीं करना, दैट आवर लीडर्स हैव टू सी। हमारे जो शीर्ष नेता है वो देखेंगे कि हमने भारत जोड़ो करने है या कोई और उसको नाम देना है, तो सभी ने ये ठीक समझा होगा। और राहुल गांधी जी ने इसकी शुरुआत साउथ से की है, वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाकर इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये भाजपा का नेतृत्व है केंद्र में, उसके खिलाफ लोग हैं, उनकी आवाज़ को एकजुट करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम हर क्षेत्र में पैदल जाकर लोगों से डायरेक्ट संपर्क बनाएंगे ताकि लोगों की आवाज़ को भी हम सुने और लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर भी मंथन किया जाए। वो मैं तो स्वाभाविक था, जिस तरह का पिछले चुनावों में मुझे लोगों का प्यार मिला, अभी भी मुझे वैसे ही अभी लोग दूर दूर से आए। और मैं तो पहले ये बात कह चुका हूँ कि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो गरीब आदमी हूँ, लेकिन अपने पैसे से लोग यहाँ आए। मुझे देख कर यहाँ जब देख रहा था मैं, लोग बहुत तादाद में लोग आए और हर बूथ से कवरेज है। और मैं तो आशीर्वाद लेने रानी साहिबा के पास आया और पूरब में भी इनका आशीर्वाद रहा है और आगे भी राजा साहब का भी आशीर्वाद रहा है। भविष्य में भी कामना करता हूँ और इनके आशीर्वाद से जीत करके, भारी मतों से जीत करके आऊँगा, इनके चरणों में आऊँगा। और ये हमारा लोगों ने वो कमिटमेंट किया और मेरा भी इनके साथ वो वायदा है और जीत करके कांग्रेस की सरकार बनेगी। लखनऊ के होटल में हुई आगजनी की दुखद घटना के बाद जागा अग्निशमन विभाग। जालौन के होटलों और अस्पतालों में फायर सेफ्टी डिवाइस और ऑक्सीजन के सिलेंडर को किया गया चेक। उरई के कान्हा अस्पताल को हिदायत देने के बावजूद नहीं मिले आगजनी से निपटने के इंतजाम। FSO जालौन ने दिए अस्पताल को बंद करने के आदेश। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड स्थित कान्हा हॉस्टल का है मामला।
अभी जैसे दिशा निर्देश शासन के जो मिले हैं हम लोगों को, उसके यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं होटलों को, हॉस्पिटलों को। तो यहाँ कान्हा हॉस्पिटल को अभी चेक करने आए तो इनके यहाँ मानक के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित नहीं पाई गई, और जो लगी भी हैं वो भी काफ़ी ख़राब कंडीशन में लगी हैं, जिसमें से अच्छी तरह से फायर फाइटिंग के लिए पानी भी पर्याप्त नहीं है। तो इस पर कई बार हमारे द्वारा कार्रवाई भी की गई है, और इसको अगर जो भी और कार्रवाई बनती है नेक्स्ट कार्रवाई की जाएगी। तो लापरवाही लगातार सामने आ रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या लगता है इस बार बड़ी कार्रवाई होगी? हाँ, इस बार मेरे द्वारा बंद करने के लिए इस हॉस्पिटल को पहले से भी लिखा गया है कि अगर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण नहीं कराते हो तो हम इस हॉस्पिटल को बंद करने की संस्तुति करेंगे। अब भी इस बार पत्राचार कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तर प्रदेश के निकाय कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान न किए जाने के विरोध में आज उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने नगर निगम लालबाग मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के निकाय कर्मचारियों की लंबित समस्याओं की पूर्ति हेतु पूर्व घोषित आंदोलन के क्रम में शशि कुमार मिश्र प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज प्रदेश की सभी इकाइयों द्वारा अपने अपने मुख्यालय पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए अपने अपने विभाग अध्यक्षों के माध्यम से महामंत्री जी नगर विकास एवं प्रमुख सचिव नगर विकास को ज्ञापन प्रेषित किया गया। सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा से इस धरना प्रदर्शन के विषय में जानकारी हासिल की। महासंघ के प्रदेश इकाइयों द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रेषित ज्ञापन एवं लंबित मांगों पर प्रदेश सरकार एवं शासन से निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों पर यथाशीघ्र सकारात्मक निर्णय एवं बैठक आदि के माध्यम से निराकरण कराए जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि 21 सितंबर 2022 को पूरे प्रदेश की इकाइयों का कर्मचारी लखनऊ नगर निगम स्थित महासंघ कार्यालय पर इकट्ठा होकर पूर्व घोषित आंदोलन के क्रम में शांतिपूर्ण रैली के माध्यम से हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा धरना देते हुए पुनः महामहिम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। महासंघ प्रदेश सरकार एवं शासन से पुनः आज प्रेषित किए गए ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि आवश्यक रूप से प्रदेश के निकाय कर्मचारियों को आंदोलन करने पर विवश न किया जाए तथा वार्ता एवं बैठक के माध्यम से समय रहते लंबित समस्याओं का समाधान कराया जाए। वहीं महासंघ के आंदोलन में लखनऊ इकाई द्वारा नगर आयुक्त इंद्रजीत को ज्ञापन दिया गया है। उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारियों की जो लंबित जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, जो सरकार द्वारा पूरी नहीं हो रही हैं, उसके विरोध में आज नगर निगम मुख्यालय में एक धरना दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और जो इस विषय में धरना क्यों दिया जा रहा है इसके विषय में हमसे बातचीत करेंगे। जी मिश्रा जी बताएं। मैं प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। ये पिछले 5 सालों के कार्यकाल में हम लोगों ने प्रदेश सरकार के साथ बैठकें किया, वार्ताएं हुई, कार्यान्वयन हुए, कार्यवृत्तियाँ जारी हुई, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। ये 17 सूत्री मांग पत्र हमारी वेतन विसंगतियों का है, वेतन सेवाओं का है, जो हमारी अकेंद्रीय सेवा नियमावली नहीं बनी है, दैनिक वेतन वर्ग 4 कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं है, पुरानी पेंशन बहाली नहीं है, हमारे पदों का सृजन नहीं है, नई भर्ती नहीं हो रही है, मृतकाशियों या कोविड काल में जो कर्मचारी मरे थे उनकी शैक्षिक नियुक्तियाँ नहीं हो रही, समय से वेतन भत्ते नहीं है। ऐसी तमाम मांगें जो 13 सूत्री मांगों में समाहित हैं, इस पर प्रदेश सरकार में समय समय पर हम लोगों ने ध्यान आकर्षण कराए, लेकिन अन्यथा 5 माह व्यतीत हो गए इस सरकार के। हम लोगों ने नोटिस दिया, ज्ञापन दिया, लेकिन अन्यथा इनकी कार्यकारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः आज पूरे प्रदेश में ये हमारा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का 1 दिवसीय धरना कर प्रदर्शन। अयोध्या धाम के तपस्वी छावनी के नए महंत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज परमहंस के समर्थन में हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने डीआईजी, डीएम और एसएसपी से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की है।
हनुमानगढ़ी के नागा साधु महंत दिलीप दास को बाहरी मानते हैं, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। 12 सितंबर को परमहंस के नए महंत को लेकर कंठी चादर और भंडारा होना है, तो वहीं 12 सितंबर को ही दूसरे पक्ष जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद के दिलीप दास की भी कंठी चादर होनी है। 12 सितंबर को जिला प्रशासन की अग्नि परीक्षा होनी है। दरअसल तपस्वी छावनी के महंत को लेकर अयोध्या में संतों का 2 गुट हो गया है। एक गुट जो हनुमानगढ़ी का है, वहाँ परमहंस के समर्थन में है। दूसरा गुट जिसका नेतृत्व राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास कर रहे हैं, वह अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास हैं। बताया जाता है कि 2019 में तपस्वी छावनी में एक ट्रस्ट बना था, जिसमें दिलीप दास को भावी महंत बताया गया था। वहीं परमहंस का दावा है कि वे स्वर्गीय महंत सर्वेश्वर दास के शिष्य हैं और बचपन से लेकर अभी तक वह तपस्वी छावनी में रहते हैं और वही असली महंत है। अब देखना यह होगा कि 12 सितंबर को तपस्वी छावनी का महंत कौन होता है, और इसी दिन जिला प्रशासन की अग्नि परीक्षा भी होनी है, क्योंकि संतों के दोनों गुट 12 सितंबर को आमने सामने होंगे। फिलहाल तपस्वी छावनी पर परमहंस का कब्जा है और उन्होंने छावनी के गेट पर ताला लगा दिया है। अयोध्या में जो परंपरा चल रही है, किसी की भी लूट लेना, किसी के भी जमीन पर कब्जा कर लेना, अब मीडिया में स्टेटमेंट देना कि किसी के बाप का नहीं, तो साधु के बाप का नहीं होता, गुरु का होता है। बोलने वाले इस बात को समझें कि किसी के बाप का नहीं, गुरु की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। भगवान की संपत्ति का कहीं भी बर्बाद होना है साधु के लिए सबसे गलत बात है। परमहंस जी सर्वेश्वर दास जी के सेवा की शुरू से आज तक थे, आज भी रह रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को महंत नहीं बनाया जाएगा, किसी बाहरी को ले आके पटक दिया जाएगा, तो हम साधु समाज जो खुद पैदा नहीं करते हैं, समाज से आता है, जो हमारी सेवा करता है, वही महंत बनता है। अगर ऐसी परंपराएं बनेंगी तो बुढ़ापा में किसी भी साधु को एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी संतों महंतों से एक ही अपील है कि जो सेवा किया उसको निर्विवाद रूप से महंत माना जाए, महंत बनाया जाए। आज फिर से सुबह एआरटीओ ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, तो 3 विद्यालय वाहनों को पकड़ा। एआरटीओ के मुताबिक ये वो वाहन है जो विभाग द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे और बच्चों को स्कूलों में ले जाने के काम में लगे हुए थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सूचना मिल रही थी कि स्कूली वाहनों में बच्चों को भूसे की तरह ठूस कर ले जाया जा रहा था और बहुत से वाहन तो बिना जरूरी प्रपत्रों के स्कूल परिवहन में लगे हुए थे। आज एआरटीओ की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। हमसे बातचीत में एआरटीओ ने इस कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी तथा लोगों से अपील की कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले ये सुनिश्चित करें कि वो जिस वाहन में अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं वो हर तरह से ठीक है और उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हमारी जालौन तहसील के जो विद्यालय मालिक हैं या यहाँ के अभिभावक हैं, उनसे अपील है कि वो अपने बच्चों को ऐसे वाहन में ही भेजें जो स्कूल परमिट से आच्छादित हैं। यहाँ के जो स्कूल के मालिक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनसे अपील है कि ऐसे वाहन ही अपने यहाँ लगाएं जो स्कूल परमिट से आच्छादित हैं। जिनमें स्कूल परमिट न हो उनसे कृपया अपने यहाँ बच्चों को न ले आएँ, न ले आएँ। धन्यवाद। अच्छा, अक्सर देखा गया कि क्षमता से अधिक वाहनों में बच्चों को ले जाया जाता है, जिनकी मानक क्षमता अगर 4 से 8 बच्चों की होती है, उस वाहन में 15-15, 16-16 बच्चे अक्सर देखे गए हैं। मैं कार्रवाई उस पर भी कर रहा हूँ, चालान कर रहा हूँ ओवरलोडिंग में। इसी के लिए अपील कर रहा हूँ कि ऐसे वाहन पे कदापि अपने बच्चों को न भेजें अभिभावक और स्कूल के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं, कि जिनमें मानक से क्षमता से ज़्यादा बिना परमिट के वाहन हैं, उनमें अपने बच्चों को न भेजें। सहयोग करें और इसी सहयोग से ही हम लोग इसमें स्कूल परमिट को लागू कराने में। उस वक्त एआरटीओ प्रशासन का चाबुक चल रहा है। एआरटीओ प्रशासन ने आज सुबह स्कूल परिवहन में लगे कुछ जो है मैजिकों को सील किया। इस संबंध में एआरटीओ परिवहन ने हमसे बातचीत में बताया है कि आज उन्होंने उन जो है वाहनों पर लगाम कसी है जो वाहन जल्दी बिना प्रपत्रों के चल रहे थे या फिर क्षमता से अधिक बच्चों को ढोकर स्कूल पहुँचा रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील भी की, हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपील भी की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले चेक कर लें, सुनिश्चित कर लें कि जिन विद्यालयों में उनके बच्चे जा रहे हैं और जिन स्कूल परिवहन में जो बसें लगी हैं या जो मैजिक गाड़ियाँ लगी हैं, उन गाड़ियों में को जरूरी मानक जो हैं उनको वो पूरा करते हैं, यानी उन गाड़ियों में भेजने से पहले सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं और सुरक्षित स्कूल तक जाएंगे और वापस आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने लोगों को आगाह भी किया है कि ऐसे वाहनों से परहेज करें जो बिना जरूरी प्रपत्रों के या बिना मानकों के स्कूल परिवहन में लगे हुए हैं।
या ओवरलोड, मतलब जिस तरीके से बच्चों की क्षमता जैसे किसी वाहन की 10 की है या 20 की है, तो क्षमता से कई गुना ज़्यादा बच्चे स्कूल परिवहन में जो वाहन लगे हैं उनमें जाते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि कृपया सजग रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। जनपद सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ के रोहित नगर में श्री श्याम परिवार कमेटी द्वारा अनुज चौहान के आवास पर बाबा खाटू श्याम का भव्य कीर्तन हुआ। देखिए रिपोर्ट। कीर्तन का शुभारंभ बाबा खाटू श्याम की प्रतिमा के सम्मुख अखंड ज्योति प्रज्वलित कर किया गया। मेरठ से आए मशहूर संगीत कलाकार शुभम आर्य ने बाबा खाटू श्याम भजन सुनाकर भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। रात भर भक्त कीर्तन में भजनों पर झूमते रहे। बाबा खाटू श्याम के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। शुभम आर्य ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। भक्तगण भजन सुनकर तालियां बजाकर बाबा को रिझा। देर रात को बाबा श्याम की आरती के बाद बाबा को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष मोहन चौहान, अनुज चौहान, डॉक्टर संजय चौहान, प्रधान संजय सैनी, एडवोकेट सोनू चौहान, राहुल कश्यप, सौरभ राणा, बिट्टू पुंडीर, अंजेश काम्बोज, नीरज काम्बोज, डॉक्टर राजीव शर्मा, मोहित, सोनू चौहान, रोहित चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। खरगोन शहर के करीम नगर में संचालित हो रही बेस्ट बेकरी पर बुधवार को प्रशासनिक कार्रवाई की गाज गिरी। नियम विरुद्ध रहवासी बेकरी में संचालित हो रहे कारखाने को दल बल के साथ पहुंचे अमले को विरोध का सामना भी करना पड़ा। यहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा, फैक्ट्री तोड़ने से हम बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि प्रशासन ने विरोध को नजरअंदाज कर जमा लोगों को सख्ती दिखाकर खदेड़ दिया। एसडीएम ने बताया कि रहवासी बस्ती में कारखाना संचालन से गंदगी के साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या हो रही थी, जिसकी शिकायत मिली थी। नोटिस का जवाब नहीं देने पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई भी की गई। नगर पालिका अधिकारी प्रियंका पटेल ने बताया कि पहले भी कार्रवाई की थी, जिसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई की गई है। 2 माह पहले भी हमने कुछ पोर्शन को इसके अलग करके इन्हें चेतावनी दी थी कि आप जो है यहाँ पे आपके और भी जो स्ट्रक्चर हैं उनकी आप परमिशन लीजिए विधिवत, और जो आपका स्ट्रक्चर है जो अनाधिकृत तरीके से बना है उसको आप अलग करिए। परंतु इनके द्वारा कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई एप्लीकेशन दी गई कि हमें इसकी बिल्डिंग परमिशन चाहिए है, ना ही इनके द्वारा जो MOS का उल्लंघन किया है, ना ही उसको पीछे किया है। यहाँ के रहवासियों की भी शिकायत थी कि यहाँ पे जो है ये पोल्यूशन करते हैं, पानी गंदा हो रहा है, इनकी बेकरियों से जो पानी निकलता है, और एयर क्वालिटी को भी लेके यहाँ पे लोगों ने प्रश्न उठाया। तो उन सब को लेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी अपना इनको नोटिस दिया है और हमारे द्वारा भी ये अवैध निर्माण की कार्रवाई की। मजदूरों का विरोध भी देता है। मजदूरों ने अपनी बात रखी थी, जिसको एसडीएम साहब ने सुना है और उनको आश्वासन दिया है कि अगर ये परमिशन ले लेते हैं तो इनकी बेकरी उसके पास सुचारू रूप से चल सकती है। बेकरियाँ और हैं और सब पे एक करके कार्रवाई करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगी कि आपके अगर कोई भी अनाधिकृत निर्माण किया है तो उसकी परमिशन आप शीघ्र से शीघ्र दें। बेटे 5-6 साल हो गए, ज़्यादा साल हो गए, आज कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी है। इससे पहले भी कार्रवाई कर सकते थे। इससे पहले भी कार्रवाई की थी ना, मैंने आपको बताया ना। 2 माह पहले भी हमने कार्रवाई की थी। उस समय हमने इनका थोड़ा सा MOS वाला पार्ट हुआ, तभी इनको चेताया था कि आपको जो है इसका बिल्डिंग परमिशन लेना है और MOS को क्लियर करना है। बेकरियों को कोई भी कार्रवाई की नहीं। बेकरियों को 8-10 साल हो गए हैं, आज 10 साल के बाद कार्रवाई देखने उसके बाद भी देखिए, आप ही खुद बता रहे हैं 8-10 साल हो गए, उसके बाद भी इन्होंने जहमत नहीं उठाई कि परमिशन ले लें। कितना एरिया हो सकता है अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। कार्रवाई चालू है, अभी कंप्लीट करके फिर आपको सूचना देंगे। ऐसे बेकरी संचालक जिनके पास में कुछ अनुमतियाँ नहीं है, जैसे बिल्डिंग परमिशन हुआ, जलकर आदि वगैरह हुआ, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ऐसे जो बेकरी उनके खिलाफ आज कार्रवाई की जा रही है। वर्करों ने भी विरोध करा है सर, उनको रोजगार खत्म हो, रोजगार को लेके था, सामान्यता विरोध था, कोई विशेष। कितने बेकरियों पे कार्रवाई? अभी 3 बेकरी में कार्रवाई अभी प्रस्तावित है, 1 बेकरी पे कार्रवाई की है, बाकी अभी और आगे कार्रवाई। कितना एरिया हो सकता है सर? अभी एरिया निकालेंगे पूरा जब सारी कार्रवाई। जहां पूरे देश में गणेश महोत्सव धूम मची है, तो वहीं पर्यटन नगरी रानीखेत में भी मराठा समाज द्वारा कई सालों से गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। रानीखेत के शिव मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव का आज भव्य शोभा यात्रा के साथ समापन किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र से आए भांगड़ा बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। हजारों की संख्या में लोग गणेश शोभा यात्रा में पहुँचे। महाराष्ट्र से पहुंची भांगड़ा बैंड की टीम ने सबका मन मोह लिया। गणेश जी की प्रतिमा को बाजार में घुमाया गया। मुख्य बाजार में 4 जगह पर दही हांडी फोड़कर
कार्यक्रम का आयोजित किया गया। महाराष्ट्र से आई टीम ने दही हांडी को फोड़कर महोत्सव को और मनोरंजक बना दिया। शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम एक्शन में आ गया है। मेयर ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निर्णय लिया कि आज से ही शहर में डेंगू के स्रोत को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर फॉगिंग और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। यह व्यवस्था नगर निगम ही नहीं बल्कि मुनिकीरेती नगर पालिका क्षेत्र में भी बने। इसके लिए बैठक में नगर पालिका मुनिकीरेती के अधिकारियों को भी बुलाया गया। अधिकारियों ने मेयर को आश्वासन दिया कि डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों से घरों के आसपास पानी एकत्रित नहीं होने की अपील की है। अभी मैं बीच में एक सप्ताह के लिए अपने पारिवारिक काम के लिए ज़रूरी काम था, जिसमें कि मैं शहर में नहीं थी। इस बीच जितना भी देखने में सुनने में लगातार मेरा जो दूरभाष के माध्यम से संपर्क हो रहा था, उसमें लगा कि हमारे क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा चंद्रेश्वर नगर चंद्रभागा वार्ड नंबर 1 से 4 तक, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंगू के वहाँ पे मच्छर पनपे हैं, वहाँ पे लार्वा मिला है, जिससे कि काफ़ी लोग वहाँ से संक्रमित हुए हैं। उसमें लगातार हमने उस नीति के तहत मैं कल रात को मैं ऋषिकेश पहुँची हूँ, तो मैंने कल ही अपने अधिकारियों को निर्देशित करा कि इसमें हमको एक ज्वाइंट बैठक, क्योंकि मेरा अनुभव भी है, हमने इसमें 2019 में जब डेंगू बहुत बड़े स्तर से फैल गया था, तो 2020 और 21 में हमने इसमें पूरी तरह से संयुक्त रूप से, जिसमें कि हमारे सरकारी अस्पताल की पूरे डॉक्टरों की टीम, एम्स के डॉक्टरों की टीम, जिला जो मलेरिया और डेंगू नियंत्रण के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी टीम, साथ में नगर निगम की टीम, जन जागरूकता के लिए आशा वर्करों को साथ में लेना, सभी को हमने इसमें साथ में लेके ताकि हम एक साथ डेंगू पे वार कर सकें। इसमें मैंने जो हमारा क्षेत्र है चंद्रेश्वर नगर का, चंद्रभागा का, वो हमारा मुनिकीरेती नगर पालिका परिषद का और ऋषिकेश का एक बॉर्डर है, तो वहाँ पे हमने नगर पालिका मुनिकीरेती से भी संपर्क करके आज उनके अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे और हमने आज ये निर्णय लिया कि हम शाम के टाइम पे जब आज से ही वहाँ पे डेंगू के लिए फॉगिंग हो, मेलाथिन हो, ब्लीचिंग हो, चाहे हमारा जो भी उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एक साथ एक बृहद स्तर पे एक साथ करेंगे, ताकि उसमें संक्रमित जो भी कीटाणु होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। मान लो हमने अपने क्षेत्र में कर दिया और उसके बाद वो दूसरे क्षेत्र में चले गए, तो कुछ ना कुछ फिर संक्रमित रोगों का ऐसे में बढ़ने का खतरा रहता है। संयुक्त रूप से आज हम 5 बजे से उसको शुरू कर रहे हैं, लगातार ये बृहद स्तर पे, पूरे युद्ध स्तर पे, ताकि यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी प्रकार से डेंगू का मच्छर बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और उसके जो सोर्सेस होते हैं जहाँ पे पानी का ठहराव होता है, उन जगहों पे हम सभी जगहों पे उसको नष्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि जनता की आस और उम्मीद है। हम एक जन सेवक भी हैं और हमसे बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे समय पे, जबकि ऐसी बीमारियाँ बड़े स्तर पे फैल जाती हैं, तो उनको एक बड़ी आस भरी नज़रों से जनता एक जनप्रतिनिधि के ऊपर या उन लोगों की तरफ देखती है जिनके हाथों में ये व्यवस्था होती है। तो हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हम पूरे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, जिस प्रकार से कि हमने कोविड में हमारे अपने स्वच्छता प्रहरी पूरी तरह से New Civic, technologically advanced, aggressively styled. For सोजत रोड कस्बे के पुलिस थाना परिसर सोजत रोड पे CLG बैठक का आयोजन सोजत सर्कल के पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें CLG के सभी सदस्य उपस्थित थे। सोजत सर्कल के पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ ने कहा कि त्योहार आपसी भाईचारा प्रेम बढ़ाता है। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की व ध्वनि विस्तारक यंत्र DJ नहीं बजाने की अपील की व ध्वनि विस्तारक से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी। सभी CLG सदस्यों से निवेदन किया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाएं। उन्होंने CLG बैठक में आए सभी सदस्यों से आग्रह किया कि कस्बे में कहीं भी अवांछनीय गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना देने का आग्रह किया। बैठक में पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास, अनिल शर्मा, प्रकाश पालरिया, कमल सोनी, वार्ड पंच कुशाल चंद, इशाक मोहम्मद, शाबिर भाई, रंगरेज, ओम प्रकाश वैष्णव, राजू वैष्णव सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सर, त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन सोजत सर्कल में कितना मुस्तैद है?
जैसा कि आपको विदित ही है कि जो भी बाहर त्यौहार या किसी भी तरह के आयोजन है सोशल सर्कल में सदैव मुस्तैदी के साथ शांति के साथ में मनवाए गए हैं। वैसे तो हम हर महीने CMG मीटिंग आयोजित करते हैं, लेकिन जब बाहर त्यौहार के दिन होते हैं तो हम सभी समुदाय के लोगों के साथ में बैठ करके और चर्चाएँ करते हैं कि ये जो आयोजन है बेहतर तरीके से हम उसको कैसे आयोजित कर सकते हैं। इसी संबंध में मैंने आज बकरी नगर और सोलपुर दोनों जगह CMG मीटिंग ली है और मुझे यहाँ के सभी आमजन लोग जो हैं और CMG मेम्बरान ने मुझे एश्योरेंस दिया कि साथ पूरे अनुशासन के साथ में और साथ ही कोरोना गाइडलाइन को भी फॉलो करते हुए और अनुशासन और पूरे हर्षोल्लास के साथ हम ये पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए जारी गाइडलाइन के तहत ये जोधपुर डिस्कॉम में पाली MBS मॉडल विरोध में आज सैकड़ों कर्मचारियों ने पाली से ऑफिस कार्यालय में 1 दिवसीय धरने के लिए कूच किया और निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों में आक्रोश है। इस दौरान अध्यक्ष सुरेंद्र सांखला, महामंत्री धर्मेंद्र, जिला कार्यकारिणी सदस्य नथाराम, विजय सिंह सेसा, राम जितेंद्र सांखला, काननाथ, कालूराम, ब्रिजेश लक्ष्मण दास भंवर, रविंद्र सिंह, कन्हैया लाल, मुकेश मेघवाल, मुकेश मारू, अशोक भैराराम, धर्मेंद्र बाबू, सुरेश, मुकेश चुंडावत, कपिल गर्ग, गिरधारी गायत्री, हेमदास, जगदीश, सरवण जांगिड़, दिलीप सेन, लक्ष्मी तरुण, परवीन आदि सोजत रोड के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, PMS जिंदाबाद, PMS जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज आप सब विद्युत विभाग के कर्मचारी कहाँ जा रहे हो इकट्ठे होकर? आज सर हम भारतीय मजदूर संगठन के बैनर तले पाली जिले में जो MBC मॉडल शुरू होने वाला है या ठेकेदारी में दे रहे हैं, निगम की खराब नीतियों के कारण MBC मॉडल के तहत पाली जिले को ठेकेदारी देने या निजीकरण करने के विरोध में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सोजतोड़ शाखा से सारे कर्मचारी आज हम पाली SC ऑफिस में कूच करेंगे और 1 दिवसीय धरना देंगे। जबकि हमारा पाली डिस्कॉम का अग्रणी श्रेणी में गिना जाता है और हमारे निगम कर्मचारियों की मेहनत के कारण पाली आज हमेशा आगे है, जिसका गलत फायदा डिस्कॉम नीति अपनाकर इस MBC मॉडल के तहत निजीकरण कर रही है, जिसका कर्मचारी संगठन पुरजोर से विरोध करता है। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस का सराहनीय कार्य, असोहा निवासी गुमशुदा युवती को उसके घर वालों को किया सुपुर्द। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ के बाग नंबर 2 कानपुर रोड चौकी पे उप निरीक्षक राहुल कुमार वर्मा को चौकी के पास एक युवती भटकी हुई मिली। पूछताछ के दौरान युवती ने अपना नाम कोमल बताया, जो असोहा उन्नाव जिले की रहने वाली है। युवती के पास मिले मोबाइल नंबर के आधार पर उसके पिता गुरु प्रसाद से संपर्क किया गया, जिसके बाद परिवार वालों की मौजूदगी में उसे परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार युवती 10 दिनों से लापता थी और फिलहाल कोई वाद दर्ज नहीं किया गया है। इस संबंध में उनके पिता गुरु प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लगभग कई 10 दिनों से लड़की जो है घर से गायब है और इस संबंध में आस पास खोजबीन कर रहे थे, परिवार वालों से पता कर रहे थे। इस संबंध में उनके द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। बताएं क्या मामला था, किस महिला की मदद करी है आपने? आज दिनांक 8 सितंबर 2022 को कोमल नाम की एक लड़की जो शहीद पथ तिराहे के आसपास आके भटक रही थी को हम पुलिस वालों द्वारा देखा गया। उसके इस प्रकार के भटकने की कार्रवाई देखते हुए उन्होंने बुलाकर उसके बारे में जानना चाहा, जिसके द्वारा अपना परिचय देते हुए उसने अपने पिता का नाम गुरु प्रसाद, थाना क्षेत्र अशोका जनपद उन्नाव का होना बताया। उसके पास एक मोबाइल पड़ी थी जिससे उसके संपर्क सूत्रों से उसके पिताजी का नंबर भी निकाला गया। उसके पिताजी को संपर्क किया गया गुरु प्रसाद, जो कि फ़ोन से वार्ता करके बताएं कि लगभग 10 दिनों से मेरी लड़की गायब है, को थाना शहीद पथ तिराहे के पास बुलाया गया, जो करीब 3-4 घंटे बाद अपने ग्रामवासी अपनी बहू के साथ यहाँ आए। उनके बातों से उनके विश्वास में लेते हुए, पहचान करते हुए उनकी लड़की कोमल को उनकी पिता गुरु प्रसाद, ग्रामवासी वीरेंद्र व भाई की बहू सोनी के सुपुर्द में दिया गया। ये महिला आपको किस हालत में मिली थी, मतलब कोई हैंडीकैप्ड है या मतलब पागल है, किस तरह की? यह महिला कोमल, जिसकी उम्र करीब 17-18 वर्ष होगी, पूरी तरह स्वस्थ
हालात में थी। विश्व शिक्षा के महत्व के दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सन 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था और वर्ष 2009 से 10 तक संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। तभी से लेकर आज तक पूरे विश्व में 8 सितम्बर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। आज विश्व साक्षरता दिवस है। साक्षरता दिवस पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा वो एक शस्त्र है जिससे समाज में इंसान अपनी मनचाही चीज कुछ भी कर सकता है। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? आप डॉक्टर बनना चाहोगे? डॉक्टर क्यों बनना चाहोगे? सबकी जान बचाने के लिए। क्या तो पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? आप पुलिस में जाना चाहते हैं? पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं? देश की सेवा। आप पुलिस में जाना चाहते हैं? आज विश्व साक्षरता दिवस है। साक्षरता दिवस पर आपका क्या होगा? साक्षरता साक्षर शब्द का मतलब है सा प्लस अक्षर। मीन्स शिक्षा से जुड़ा हुआ हर एक वो चीज़ जो हमें जीवन में अधिकार लेने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा के सहारे ही इंसान अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ बोल सकता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकता है। आज विश्व साक्षरता एक ऐसा शब्द जो इतना बड़ा हथियार है कि इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि व्यक्ति शिक्षित होकर समाज के उन सभी मुकामों को हासिल कर सकता है जिसकी उन्हें चाहे, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को भी निर्धारित करती है। क्योंकि व्यक्ति अगर शिक्षित होगा, साक्षर होगा, तो निश्चित तौर पर रोजगार के जो अवसर हैं उनको वो प्राप्त करेगा, और जब रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तो एक बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होगी। साथ ही शिक्षा पाकर जो व्यक्ति ऊपर आएगा या जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो अपने समाज को भी एक नई दिशा देगा। इस संबंध में आज विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर हमने कुछ स्कूली बच्चों से बात की, कुछ स्कूल में जाकर देखा तो बच्चे इस विश्व साक्षरता दिवस के प्रति सजग भी दिखाई दिए। उनका कहना ये भी था कि साक्षरता वो हथियार है जिससे समाज में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यानी कि समाज में जो परेशानियां हैं, जो उलझने हैं, जो समाज में कुरीतियाँ प्राप्त हैं, उनको भी जो है दूर किया जा सकता है। यानी कि साक्षरता दिवस पर आज शिक्षा की ओर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से ARTO कार्यालय में यूनाइटेड वे NGO के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए इसके लिए चर्चा करते हुए कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले सर्वप्रथम ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया। गुरुवार को श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग स्थित ARTO कार्यालय में यूनाइटेड वे NGO के माध्यम से एक कार्यशाला का आयोजन परिवहन विभाग की ओर से किया गया, जिसमें पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले दर्जनों ड्राइवर भी शामिल हुए। उनको बताया गया कि दिन के साथ अब रात में भी ड्राइविंग पहाड़ों पर लोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से लोडर वाहन शामिल है। रात को किस प्रकार ड्राइविंग करनी है और किस प्रकार सड़क दुर्घटना होने पर मदद लेनी है, इसकी जानकारी ड्राइवरों को दी गई। मौके पर ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया। जो ड्राइवर इस विशेष ट्रेनिंग को लेंगे उनको परिवहन विभाग की ओर से कार्ड भी जारी किया जाएगा। ARTO ने बताया कि रोड सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। कि जैसा मैंने पहले भी कहा, ये समग्र जानकारी है। इसमें जैसा हम जानते हैं कि ऋषिकेश चारधाम यात्रा का मुख्य केंद्र है, जहाँ से सारे के सारे धामों के लिए यात्री प्रस्थान करते हैं, और पहाड़ों पर जो चालक जाएगा उसको अतिरिक्त जो सावधानियां पहाड़ की ड्राइविंग के हिसाब से बरतनी है उनकी जानकारी विशेष रूप से दी जाएगी। हिल ड्राइविंग है, खासकर रेन में ड्राइविंग है, आजकल एक नाइट ड्राइविंग का भी बन गया है। तो नाइट ड्राइविंग की जो लिमिटेशंस हैं और जो नेसेसरी उसमें हम लोगों को सेफ्टी लेनी है उसकी जानकारी दी जाएगी। तो प्रोग्राम रखा गया है, इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में? जी, तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे RTO सर हैं, पटोही सर, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी ARTO इन्फोर्समेंट हरिद्वार आई हैं, श्री रश्मि पंत मैम। इसके अलावा हम लोग हैं ARTO A और ARTO E ऋषिकेश। NGO भी इसमें? जी। जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये परिवहन विभाग और यूनाइटेड वे मुंबई दोनों के साथ मिलकर हुआ है। कितने चालक हैं अभी? वर्तमान में 35 चालकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कब तक चलेगी? ये लगभग 3 से 4 घंटे की वर्कशॉप होगी।
फूड सेफ्टी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके कई प्रमुख घटक हैं। सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य यह है कि जीवन बचाया जाए, जीवन अनमोल है। उसके कई प्रकार के हमारे इसमें जो वर्कशॉप होगी, कई प्रकार के घटक होंगे। सुरक्षित ड्राइविंग, एक्सीडेंट के केस में आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होनी चाहिए, नाइट ड्राइविंग, पहाड़ों में ड्राइविंग, कोहरे में आप कैसे चलाएंगे, आप व्हीकल का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ओवर स्पीड आपका कितना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, और जो मोटरवे के रूल्स हैं, जो उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं पिछले कुछ निकट उसमें समय पे, उन सब की एक जानकारी एक पैकेज और कैप्सूल के रूप में हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज हमने इस बार किया है, या तो अरविंद पांडे जी का उसमें सहयोग रहा है कि एक चालक या परिचालक जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है, वो आर्थिक स्थिति के ऐसे कोई चक्र में फंस जाता है कई बार कि वो उससे बाहर निकल नहीं पाता, और ये सब चीज़ों के लिए फिर अपना समय या सोच नहीं दे पाता। तो ऐसी स्थिति में हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था आज के आयोजकों से, यूनाइटेड वे से, कि एक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए एक ड्राइवर और कंडक्टर को क्या जानकारी दी जानी उचित होगी। उसमें एक विशेष कार्यक्रम एक इसमें बनाया और उन्होंने इसमें अच्छा तैयार किया है। जैसे कई प्रकार की ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिसमें एक्सीडेंट के केस में या मिस हैपनिंग के केस में भी इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ मिलती हैं, दुर्घटना बीमा मिलते हैं। कई लोगों को यही नहीं मालूम कि हम जब बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो उसमें भी हम दुर्घटना बीमा लाभ भी उसमें शामिल होता है। ऐसे कई योजनाएं हैं जिसमें दुर्घटना बीमा लाभ होता है। इंश्योरेंस घटना व्हीकल की जो इंश्योरेंस होता है उसमें कई प्रकार की योजनाएं ऐसी हैं जिनसे लाभ लिया जा सकता है और इन सारे लाभों को लेकर अपने आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। तो अनुरोध था हमारा, अच्छी जानकारी इन्होंने आज इसमें एकत्र की है और उम्मीद है कि जब ये आज के ट्रेनिंग वर्कशॉप पूरी होगी तो इस क्षेत्र में एक आर्थिक सुधार अपनी पारिवारिक स्थिति में कैसे करे ड्राइवर और परिचालक, इसके ऊपर भी उनको एक बहुत इम्पोर्टेंट आज के डेट में आज के एक इम्पोर्टेंट गाइडेंस इस कार्यक्रम से मिलेगा। मैं दिनेश चंद पटोई, RTO यानी संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून प्रशासन। तीर्थ नगरी ऋषिकेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर तो पुलिस रोक लगाने का प्रयास कर ही रही है। अब पुलिस ने नशीली दवाइयों, स्टेशनरी की दुकान पर बिकने वाले प्लूड और हार्डवेयर की दुकान पर बिकने वाले नशीले केमिकल की बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने केमिस्ट, हार्डवेयर और स्टेशनरी के व्यापारियों के साथ बैठक की। नशे पर पाबंदी लगाने के लिए व्यापारियों से चर्चा करते हुए उनके सुझाव भी दिए। बैठक में CO DC डोडियाल ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए कि किसी भी रूप से नशीली दवाइयां बिना डॉक्टर के पर्चे के न दी जाए। हार्डवेयर की दुकान पर कई पदार्थ ऐसे हैं जो नशीले होते हैं। स्टेशनरी की दुकान पर बिकने वाला प्लूड भी नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन पदार्थों की बिक्री इस प्रकार की जाए जिससे कि युवा वर्ग इसे नशे के रूप में प्रयोग न कर सके। ये ड्रग्स फ्री उत्तराखंड जो मुहिम चल रही है उसके अंतर्गत ये मीटिंग रखी गई कि हम ऋषिकेश को ड्रग्स फ्री कैसे कर सकते हैं। इस पर विचार विमर्श भी किया गया और कुछ गाइडलाइन जो सरकार की है उनके बारे में बताया गया और कैसे कैसे हम इसे रोक सकते हैं, इस नशे की प्रवृत्ति को, उसके संबंध में बताया गया कि आप अपने मेडिकल हॉल में या हार्डवेयर की दुकान में या बुक सेलर की दुकान में जो व्हाइटनर, जो एडेसिव, जो दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं और वो उनका उनसे मतलब नहीं होता और आप उसको भली भांति जानते हैं, तो उसको कैसे आप मना करेंगे और कैसे आप उसकी सूचना पुलिस को देंगे। इन सब चीज़ों पे हम नियंत्रण करके कैसे एक अच्छे समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं और हम इस नशेखोरी की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर तो नशीली दवाइयों का मामला समझ में आता है, लेकिन स्टेशनरी और हार्डवेयर वालों को बुलाया जाए, ये थोड़ा समस्या करेगा। ये जैसे स्टेशनरी की दुकान है, इसमें कुछ बच्चे व्हाइटनर, हार्डवेयर की दुकान में जो ये चिपकाने के लिए एडेसिव जो इस्तेमाल होता है उस तरीके की चीज़ों में जिसमें स्मेल आती है तीखी, उसको नशे की तरह इस्तेमाल करते हैं और वो भी नशा करता है। तो उसको भी आप गलत हाथों में ना दें, उसमें कैसे आप रोक लगाएं, इसके बारे में उनसे उनके विचार जाने और उनको सलाह दी गई कि कैसे इसमें हम काम कर सकते हैं। काउंसलिंग के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है, क्या है? बिल्कुल, ये जो इतने सारे लोग जिनके यहाँ इस टाइप के लोग नशेखोरी करने वाले, जिनको उन दवा ना दें, जिनको वो एडेसिव ना दें, जिनको व्हाइटनर ना दें, लेकिन उनके बारे की उनकी संबंध में जानकारी
पुलिस को ज़रूर दें। जो भी उनकी जानकारी में आता है कि ये नशा कर रहा है उसके बारे में ज़रूर बताएं, उसको चिन्हित करने में पुलिस की मदद करें। पुलिस फिर उससे बात करेगी और उसकी काउंसलिंग कराएगी। एम्स में भी कुछ बेड आरक्षित करने के लिए बात बताई गई। एम्स में ये बात की जा रही है कि इनको काउंसलिंग में हम उनका सहयोग कैसे ले सकते हैं, एम्स का सहयोग हम काउंसलिंग में कैसे ले सकते हैं और उनके कौन डॉक्टर हमें इसमें सहयोग करेंगे, इस संबंध में हमारी बात एम्स में चल रही है। कल महापौर सविता भाटिया ने सीवर सफाई की व्यवस्था देख रही स्विस इंडिया के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। लखनऊ शहर में सीवर की किसी भी समस्या को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। इसे रियलिटी चेक को देखने के लिए सूचना इंडिया की टीम आज जलकर विभाग के जोन 7 के सेक्टर 16 में सीवर सफाई का सच जानने पहुंची, जहां इंदिरा नगर सेक्टर 16 में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के ऑफिस के बाहर नालियां उफना रही थी। वह कई बार नगर निगम जोन 7 के सफाई एवं सैनिटरी ऑफिसर को सफाई के लिए बोल चुके थे, परंतु सफाई नहीं हो रही थी। सफी डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा से बातचीत के उपरांत पता लगा कि आगे जाकर सीवर चौक है, जिस कारण नालियों से पानी नहीं निकल पा रहा है। आज उन्होंने स्विस इंडिया के सुपरवाइजर साहब को फोन करके बुलाया, परंतु वह लोग सिर्फ आए और देखकर चले गए। हाँ भैया, पानी यहाँ पे हमेशा भरा रहता है, गंदगी तो बहुत है यहाँ पे सेक्टर 16 में। नगर निगम का कोई काम नहीं होता यहाँ पे। नहीं, सीवर सफाई का काम एक दूसरी कंपनी के पास है। अच्छा, कंपनी का काम है तो यहाँ कोई ऐसे सफाई नहीं होती। आप खुद ही देखिए, काफ़ी दिनों से बारिश हो जाए तो पूरा यहाँ तक आ जाता है। ये पानी इससे भरा रहता है? हाँ अक्सर, और बरसात में तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत हो। बिल्कुल। स्विस इंडिया का कार्य बहुत ही निराशापूर्वक है। जब हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने स्विस इंडिया के महाप्रबंधक राजेश मठपाल से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा, समस्या अब हमारे संज्ञान में आ गई है और इसको जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। आज सूचना इंडिया की टीम नगर निगम जोन 7 के सेक्टर 16 में है और हम हैं अधिशासी अभियंता बिजली के ऑफिस के बाहर। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नालियों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर नालियों का गंदगी आप अगर देखेंगे तो पूरी बाहर तक निकल रही है। मैं एक बार अपने पीछे आके अपने कैमरामैन से कहूँगा किस तरह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ये देखिए कितना बुरा हालात है यहाँ पर, और ये पानी जो है वो इतना ज़्यादा नालियों के बाहर है, कितनी बदबू आ रही है, कितने मच्छर हैं यहाँ पर। तो इसका जो मुख्य कारण है, मैं आपको बता दूं, इसका मुख्य कारण है स्विस इंडिया, जिसके पास सीवर सफाई का काम है। लखनऊ शहर के तकरीबन 6 जोनों में इनका काम है सीवर सफाई का, और इनको करोड़ों रुपए का भुगतान भी किया जाता है हर महीने। कल ही लखनऊ की महापौर सविता भाटिया ने इन लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करी थी कि आप लोगों को 24 घंटे के अंदर इस तरह की जितनी भी शिकायतें हैं उसको दूर कर देना चाहिए। जोन 7 का जो सफाई विभाग है, जहां पे जिनके पास सफाई की जिम्मेदारी है, उन्होंने भी कई बार यहां की सीवर सफाई के लिए कहा गया, लेकिन स्विस इंडिया के ऊपर अभी भी जू तक नहीं रेंग रही। उसको 10 बार आज सुबह भी फ़ोन किया गया, उनके सुपरवाइजर आ रहे थे। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा जहां पे ये सीवर चौक है। और यहाँ के जो सफाई हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्होंने 2 बार फ़ोन किया कि स्विस इंडिया की टीम आएगी और इसको यहाँ पर आकर इसकी सफाई करेगी, लेकिन स्विस इंडिया की टीम अभी तक, जब मैं यहाँ पे हूँ इस समय 2-2:30 बज रहा है, लेकिन स्विस इंडिया की टीम अभी तक नहीं आई है। और इनके ऊपर किसी भी तरह से किसी भी मतलब अगर इनको कोई भी शिकायत करता है, कोई चाहे पब्लिक करे, यहाँ तक कि कल सविता भाटिया ने कहा कि आपको हर मेरे जो जोन है उसमें अपना एक ऑफिस बनाइए, वहाँ पर लोगों को बैठाइए, पार्षदों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको 24 घंटे के अंदर निस्तारित करिए। लेकिन स्विस इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का कोई असर नहीं है। मुझे लगता है अब नगर आयुक्त को और शासन को स्विस इंडिया कंपनी के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए।